So, friends, on behalf of My Child Life Foundation, we extend a very hearty welcome to all of you. और ये इस महीने का सबकी सुनो प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोगों को एक चांस देता है, एक मौका देता है कि हम कुछ बात करें। और इस प्रोग्राम का एंकर करने के लिए मौजूद है अपने प्यारे मित्र रमणी मूर्ति जी। मैं रमणी मूर्ति जी से आग्रह करता कि वो आए और प्रोग्राम का संचालित करें। रमणी मूर्ति जी, फ्लोर इज ओपन। Thank you, sir. Thank you so much. Good evening, friends. नमस्कार आप सब लोगों को। दोस्तों, आज फिर आपके समक्ष हूँ सबकी सुनो प्रोग्राम को लेकर। मैं आभार मानती हूँ डॉक्टर सेन गुप्ता जी का, जो मुझे अवसर देते हैं ये प्रोग्राम प्रस्तुत करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में दोस्तों का होना बहुत जरूरी होता है, जहां हम मन दिल खोल के उनसे बातें कर सकें और फिर महसूस होता है कि मन हल्का हो गया हो। तो इसी विषय को लेकर आज हमारी पहली वक्ता आ रही हैं कल्पना जी, जो अहमियत बताएंगी दोस्तों का उनकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है। आइए कल्पना जी और सुनाइए। आप म्यूट में हैं, म्यूट। हाँ। Thank you, Ramani ji, for this introduction, and namaste to everybody. This would be my first participation in MRL Zoom program, and uske piche wajah hai that I think I know all of you as acquaintances, और मुझे दोस्ती बनानी है आप सबके साथ। Okay, so with this, let me start. 4 मिनट आपने दिए हैं। So I want to say that दोस्ती जितनी मेरे लाइफ में at every turning point, तो बचपन में जब मैं 9th स्टैंडर्ड में फेल हुई थी मैथमेटिक्स में, तो मेरे दोस्त की भाई ने आए दोस्त लेके गई एंड शी सेड आई विल टीच यू मैथ्स, डोंट वरी, मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है ट्यूशन का पैसा देने के लिए, तो मैं सिखा देती हूँ, तो यू कम टू माय हाउस। सो ऐसे सिखा के इन द नेक्स्ट टाइम आई क्लियर्ड माय grade 9, and also her brother gave me a tip कि हाथ दे के कि you go to Hanuman Mandir every day, so it will be good for you. So that is another thing that आज तक हनुमान जी को मैंने छोड़ा नहीं, from that time in 1972. Now coming to as I grew in my life and got married at a very early age at 20 and moved into marriage. So I'm not feeling ashamed to talk about my life as such, but I would share with you that yes, I was in a traumatic, abusive marriage. So I had 2 good friends from my neighborhood and my college mate. So my neighborhood friend, when I was thrown out of my home one night in 2005, उन्होंने मेरे को शेल्टर दिया दिल्ली में. So Bombay to Delhi, I traveled, not knowing what is my next destination or what is going to happen to me. 15 दिन में उनके घर रहे, and both she and her husband took care of me with, I did not have to think कि मेरे पास पैसा नहीं है, इनको क्या देना, I am sitting here like this. Not even once they made me feel that. And that was the first time her husband wrote the CV for me to apply for a job, because until then I was just a teacher, a homemaker, trying to just, feel good by going for some work or something. Then Uday ji in my life is first a friend, counselor, philosopher, friend, guide. And now this past 9 years, he's part of my life. So he gave me the pedestal to pick up the reins of my life at the age of 38 in 2001 and start my journey to study again, to move from a victim stage to an empowered woman. So from 38 of my age to 47, लगातार मैंने पढ़ाई किया,
as a counselor, B.Ed in special education, M.Ed in special education, as a trainee. So I cannot forget how these people have given me strength, have given me the power and given me the to understand and recognize my own strength from within. 1982, I joined college. So I should talk about that good friend of mine. Till today in life, we talk at least for 1 to 1.5 hours every day. So she, in Chennai, I have her permission also to use her name, that is Anita Mohan. She's also a counselor. So friendship, in younger days, we only talk about खेलने के लिए कोई साथी चाहिए, हमारे साथ खाना खाने के लिए कोई साथी चाहिए, हमारे होमवर्क कुछ कॉपी कर सकते जो नहीं पता, कुछ हमारे लिए बुक्स लेके आए, कुछ स्टेशनरी दे दे, ऐसे था. बट as years go by, the friendship goes beyond that. Is even when we are silent, my friend understands what I am going through. पूछने की जरूरत नहीं है मुझे क्या चाहिए. And such is a friend Anita. कि जब भी मेरे को कुछ भी experiences, जैसे आज बोलते हैं ना, सोसाइटी के सामने क्या बोलना, सोसाइटी के सामने क्या नहीं बोलना, बट अनीता के सामने मैं सब कुछ बोल सकते. एंड शी वुड गाइड मी, हेल्प मी, नॉट जज मी. एंड एक टाइम था whenever I went to Chennai, which is my birthplace, and I have to go take care of my father, who subsequently died in 2018 at the age of 95. But every time I went to Chennai, I cannot meet my friends much because my father was a disciplinarian. He would always say, मेरे को देखने के लिए आई कि friends को मिलने के लिए आई. So Anita will always come home, chat with me, chat with daddy, and daddy को मना करके वो मेरे को lunch को लेके चले जाती. Every time. And every time my father knew this, and he'll say, हाँ, you are not able to ask me, तो friend को बुला के चली जा रही है, भाग रही है यहाँ से. So, and at all those times, I didn't have to open my purse, because Anita somewhere felt that I am at a situation where maybe I cannot afford it, or I am answerable to somebody if I spend. So she used to take me to the best of restaurants, the best of hotels in Chennai, but I have not paid a single time. Yes, but now for the past 5 years, she has been coming. She came to Jamnagar where I worked in Reliance, so I was able to repay a little bit of what she has done for me. She has come to our retirement home in Baroda, where at her difficult times, I could be there for her emotionally, and also return very little of what she has done for me. My career today would not have taken off without these 3 pillars in my life. And last but not the least, but the most important of all, friend, philosopher, and guide is my God, Hanumanji. So these 4 pillars, Udayji, Sita, Anita, and Hanumanji, they are the 4 people upon whom I stand tall today. So I think it's so important to have friends, to continue to be in our life. So today, when I'm in the field of counseling, I feel that there are many youngsters who are very lonely and who are not having friends to speak their heart. And friendship is on the pillar of trust, the pillar of trust, the pillar of love, the pillar of understanding, and the pillar of shared experiences without being judgmental. There should be no lens when you see a friend. It is an open heart. And I have been lucky
to have these 4 pillars continue to be in my life. I hope to have many more, and I do get also, but I would say they are more like angels coming in my life as and when I need them. Thank you so much. I don't know if I completed. Very well said, Kalpana ji, very well. दिल को छू लिया आपने. जिंदगी में सचमुच ऐसे दोस्त होना बहुत जरूरी है. दोस्त तो बहुत आते हैं हमारे जिंदगी में, लेकिन कुछ रुक जाते हैं और हमारे दिल को छू जाते हैं और हमारे दिल में बैठ जाते हैं. Correct. आप उन्हीं लोगों में से हैं जिनके दोस्त हैं जहां पर आप खुल के बात कर सकें और वो जजमेंटल ना हो. बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला. Thank you for this wonderful opportunity, and I also would be very, very happy to get improvements and feedbacks. I have never ever spoken in this wonderful forum. I am always in awe of Dr. Sengupta, Samatha ji, Naveen ji, and a whole lot. I remember some of you, Ushadi. I remember Chandra ji. I remember Ramani ji now because I spoke with her. But every single person, I am in awe of your energy, your positivity, and you are my role models because I am just 60 now. So you are my biggest role models. Thank you so much. Thank you so much. And you will have many more things to share in this platform, which Dr. Sengupta sir is giving us the chance to speak. Thanks. So with this, we go to the next. हमारे अगले वक्ता हैं नवीन दुग्गल जी. नवीन जी बात करेंगे ह्यूमन रिलेशंस के बारे में. तो नवीन जी आइए और बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप. नवीन जी. Hello, can you hear me now? Yes, sir. Yes. Okay, take one. नमस्कार. आप सबको पहले तो 15 अगस्त की बधाई हो. वैसे तो मुझे अचानक कोई भी सब्जेक्ट दे दो तो मैं बक देता हूँ, बोल देता हूँ, कोशिश करता हूँ अपने विचार प्रकट और शेयर करने की. तो मैंने वैसे ही सोचा चलो व्हाट इज ह्यूमन रिलेशनशिप, और मेरे प्रीवियस स्पीकर ने भी अच्छी बात बताई फ्रेंडशिप के ऊपर. तो इन जनरल एक ये जो रिलेशनशिप है, ये बंधन है, ये तरीका है हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और जो एबिलिटी है जो इंटरेक्ट करना, जो हेल्दी, हम्बल और माधुर्य से, जिसमें हमें खुशी हो, जिसमें अपनापन लगे, उसको हम कहते हैं गुड रिलेशनशिप. वैसे तो 4 टाइप की रिलेशनशिप होती है. तो कहते हैं कि भाई कम्युनिकेशन एक होनी चाहिए, दूसरी क्वालिटी है एम्पैथी होनी चाहिए, तीसरा जी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर है कि दूसरे को स्ट्रेस ना देकर इतने प्यार से गाना गाए या मोहब्बत से बात करे कि दूसरा जो मजा आ जाए वो यादें रह जाएं. और पल दो पल का साथ है, पल दो पल मेरी कहानी है, ये गाना तो आपने सुना होगा. और आखिरी में जब लॉज, इन लॉज, बाय लॉज, ब्रदर इन लॉ, फलाना लॉ, डॉटर इन लॉ सब झगड़े होते हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और रेजोल्यूशन का बड़ा योगदान होता है, जिसमें हमें लैंग्वेज और अपनी टोन और अपनी अंडरस्टैंडिंग को शांति से सुनकर कम बोलना है. मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, माफ कर दो. ओके, द डिग्निटी एंड डिजायर टू लव एंड बी लव्ड इज द की टू ह्यूमन रिलेशनशिप. हम कोई भी जब नौकरी के लिए जाते हैं तो हमें सिखाया जाता है प्रोडक्टिव बनो, ये करो, वो करो, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट सिखाते हैं. हायरार्की है, लीडरशिप है, सर्वेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट है. मींस वी आर सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, सो वी शुड बिहेव दैट वे. और हमारा एक ही लक्ष्य होता है उस टाइम कि भाई हमारी नौकरी ना छूटे, तो जबरदस्ती करके हम वैसा बोलना शुरू कर देते हैं. वो ऐसा होता है जैसे हिज मास्टर्स वॉइस, जो कुत्ता दिखाया था जो HMV का, हिज मास्टर्स वॉइस वाला था, वो सुनता था और वो एंजॉय करता था. बस सुनो और मुंह मत खोलो. ये सारे पॉलिटिकल बड़े बड़े जो बोलने वाले हैं, यहाँ के महा खलीफा बोलते रहते हैं, उनको मीडिया में ज्यादा ध्यान नहीं देना. लेकिन आपका क्या प्रिंसिपल है, आप क्या चाहते हैं, तो उसके आगे मैं बढ़ते हुए ये कहता हूँ
कि लिसन, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड विद आई कांटेक्ट, ये पुराना किस्सा था। आज की दुनिया में हम वीडियो पे हैं, जूम पे हैं, मॉडर्न कम्युनिकेशन डिजिटल में है, तो आपका चेहरा जो दिखता है उसको भी बहुत कुछ चीजें अट्रैक्ट करती है, वॉइस जो होती है वो अट्रैक्ट करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो इतनी इमेजेस देखने के बाद हम भूल जाते कि इसका सिर देखा था कि उसका सिर देखा था, तो हमारी मेमोरी का काफी एनर्जी लेवल कम हो जाता है, बिकॉज वी आर टू मच ग्लू टू दिस मीडिया एंड डिजिटल व्हाटएवर, मोबाइल्स वगैरह वगैरह। इनको अपना इस्तेमाल करना है बट टू योर एडवांटेज। अच्छा, आज की नई पीढ़ी जो बोल रही है, माँ बाप बोलते हैं भाई माय ग्रैंड चिल्ड्रन दे डोंट गिव मी टाइम, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट इज, क्योंकि हमने खुद ही अपने बच्चों को या अपने भाइयों बहनों को और अपने फ्रेंड्स को भेजा है अब्रॉड, तो वो फिर वहाँ की संस्कृति सीखकर, वहाँ की क्लाइमेटाइज होकर वहीं वे रोबोटिक जैसे बन जाते हैं। आजकल की जॉब में IA और AI जैसे बन जाते हैं, उसके डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि जो रिलेशनशिप है, जब हम जवानी में देखते हैं, लड़के ने लड़की को देखा या कोई अच्छा खूबसूरत एक सीन देखा तो हम कहते हैं ओ प्लूटोनिक, आई फॉल फॉर इट, ओ दैट्स ए नाइस वन, अ क्लोज फ्रेंडशिप विदाउट अदर रिलेशनशिप। फिर दूसरा हो जाता है कि मैंने स्माइल दी और उन्होंने स्माइल दी, उसने आंख मारी, एक छोटा सा बच्चा है, तो उसको कहते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप। वो एक कमिटमेंट और इनफैक्चुअल, मतलब अट्रैक्शन है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो देखते रहते हैं और चले जाते हैं, एक दृश्यम जैसे। फिर है कॉन्फिडेंट रिलेशनशिप, जो इम्बैलेंस रिलेशनशिप है, वेयर वन पर्सन टिपिकली टेक्स केयर ऑफ द अदर। ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज को डिपेंडेंट रिलेशनशिप। इस उम्र में जब हम सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो वो जो फिल्म थी एक दूजे के लिए, हमने कितनी प्यार से देखी, कितनी बार देखी फिल्म, बॉबी देखी और बहुत सारी ऐसी फिल्में। लेकिन जब आखिरी में जब 60 के ऊपर चले जाते हैं, वो कहाँ गई बॉबी और कहाँ रही एक दूजे के लिए, बस कहते हैं डोंट डिस्टर्ब मी, मैं आई गो माय वे, यू गो अवे। तो बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आती हैं, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, अपने बहू से, किसी से भी। बट उसको हमें ये नहीं कहना कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमें दूसरी नई रिलेशनशिप शुरू करने में हर्ज क्या है। जैसे अभी हम MRL में आए हैं, हमें इतना अच्छा कॉन्फिडेंस मिला है डॉक्टर सेनगुप्ता और पूरी टीम ने, सेमदा मैम, और हर इंसान में वो ब्यूटीफुल क्वालिटीज हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ बी लव एंड बी लव्ड, बट टू बी और नॉट टू बी इज ए क्वेश्चन। तो हम बी से बिकम नहीं होना चाहते, क्योंकि आई कैन नॉट चेंज माई कैरेक्टर, आई हैव ईगो प्रॉब्लम, आई वाज सो एंड सो द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, आई वाज लाइक द एयर इंडिया में वो करते हैं नमस्कार, वो ऐसे मैकेनिकल बोलते हैं जो आप कभी भी एयरलाइंस में है नमस्कार, और वही अगर आप गांव में जाएंगे तो या हैदराबाद में नमस्कारम, कैसे हैं सर, सब अच्छे 3-4 डायलॉग बोलते हैं, तो उससे हमारे दिल खुश हो जाता है। और छोटे बच्चे जब बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन वही अंग्रेजी में हम कहते हैं हाय हाय हाउ आर यू, हाय ऑल ओके गाइस, मराठी में बोलते हैं हाय कसं काय, तुम्ही बरा आहे झाला, और सिंधी में बोलते अरे छा बड़ी वठू मतलब तू कैसा बोलती रे, अरे बाबा चिल्लाते क्यों। और पंजाबी होगा तो कहेगा ओ मैं क्या जी, ओ मैं क्या जी, मुकर्रर मुकर्रर, जैसे हमारे भारत साहब बोलते हैं कई बार, नवीन जी नवीन जी नवीन जी, उसके आगे का सेंटेंस ही नहीं होता है, तो प्यार कैसे होगा आगे। तो कहने का मतलब है ऐसे जो कुछ लोग होते हैं जो ओपन टाइप होते हैं, दिल खुश से बात करते हैं, उनको कोई रिलेशनशिप आजू बाजू उम्र का ख्याल नहीं रहता है, बोलते जाते हैं। तो उनको क्या हम लोग बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं वो वेड़ है, वेड़, वेड़ मतलब येड़ा है, मजनू है, वो मजनू है, इसको मालूम नहीं है क्या बोलता है। जैसे हम ट्रेन में काफी जाते हैं या बस में जाते हैं, तो बस अड्डा बस कंडक्टर क्या बोलता है, 1 2 3 4 5, ए भाई के पीछे नहीं चढ़ना। ये कौन सा कम्युनिकेशन है, ये कौन सा रिलेशनशिप है। अरे भाई फोकस ऑन व्हाट इज टू बी डन। तो उसके बाद एक होता है जो आज के वायलेंस के ऊपर है, जो आपने रेप्स और ये कुछ होता है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वो बहुत डेंजरस है। जैसे आदमी एडिक्शन में होता है, गुस्से में होता है, रेज में होता है, बंदूक होती है उसके हाथ में, तो उसको सिर्फ कोई रिलेशनशिप से मतलब नहीं है, वो अपना काम करके जाता है।
तो ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हमें जो ये रिलेशनशिप की कैटेगरीज अगर हम समझ जाएं और रोल प्ले अकॉर्डिंगली हमारे वर्ड्स और हमारे ख्यालों को प्रकट करें तो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो। और सबसे ज्यादा तो साइलेंट रिलेशनशिप जो हम डॉक्टर सेनगुप्ता से हम सीख रहे। तो फर्स्ट रिलेशनशिप है फैमिली रिलेशनशिप, दूसरी जो है फ्रेंडशिप रिलेशनशिप आप जानते हैं, फिर थर्ड है जो एक्वेंटेंस है, एक्वेंटेंस जब हम नई जगह पे जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, छोटे गांव जाते हैं, पता लगाते आता पता इंफॉर्मेशन। फिर होता है रोमांटिक रिलेशनशिप, वो जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ बीवी से ही है, ये कोई भी चीज से, आर्ट वर्क हो, कला हो, गाना हो, डांस हो, उसको हम रोमांटिक रिलेशनशिप कहते हैं, क्योंकि नहीं तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पैशन नहीं है तो आप कर नहीं पाएंगे। फिर है दूसरी है एक्स सेक्सुअल है, वो मैं नहीं कहूंगा। फिर है वर्क रिलेशनशिप, अरे जिंदगी हम वर्क रिलेशनशिप के लफड़े में 90% हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। और उसमें क्या हो जाता है कि जब हम घर आते हैं तो हम कहते हैं आई एम द मैनेजर, लेकिन जब बीबी एक आवाज करती है तो हम चूहे के जैसे चुप हो जाते हैं, बोलिए क्या कहना है, क्योंकि वो अपना एडजस्ट नहीं कर पाते पैरामीटर। उनका जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है उनको बदली करना चाहिए। ये मर्दों के लिए है ज्यादा करके कि दे शुड अंडरस्टैंड वुमेन एंड रिस्पेक्ट देम एंड नॉट जस्ट बॉस ऑल ओवर द लाइफ, इट इज एज इफ दे आर प्रॉपर्टी। ये मैं हर्ट नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। और आखिरी में जो ये डिजास्टर हुए जैसे हिमाचल में हुआ, यहाँ हुआ, वहां हुआ, उसमें होते हैं सिचुएशनल रिलेशनशिप। कई बार हमें पता नहीं होता आगे क्या है, जैसे होम गार्ड्स आते हैं या हम दूसरी कंट्री में इवैक्यूएशन हो रहा है, तो उसमें हमें सिचुएशनल रिलेशनशिप में सोच समझ के वहां के अनुसार एनवायरनमेंट को देखकर अपना मूव और शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। और कभी क्रिटिसाइज ना करो, सबको कहो बहुत बढ़िया, लेकिन मैं ये कहता हूँ अरे अंदर से आप भी बढ़िया रहो। धन्यवाद, आपका बहुत टाइम लिया मैंने। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड माय लिटिल टॉक। संगत चतुर, जय हो। बहुत अच्छा बोला आपने। एक जगह खटकी मुझे कि हमेशा बीवियों को दोष देते हैं कि वो चिल्लाते हैं, लेकिन बाद में आपने कहा कि उनको समझना चाहिए। बहुत सही कहा आपने। और साइलेंस इज गोल्डन, the best line that is, I think it works wonders at many times. Very well said sir, बहुत अच्छा बोला आपने, thank you so much. Next हम अगले वक्ता पे चलते हैं। पता है कभी कभी ऐसे होता है कि हम जिन लोगों से बात करते हैं या पहचान के लोग हों या किसी से नाराज हों, कैसे बात शुरू किया जाए ये करने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो इसी विषय को लेकर आ रही हैं हमारी उषा जी, जो बताएंगी हाउ टू मेक अ स्मॉल टॉक। आइए उषा जी। थैंक यू रमनी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आपने जो बोला साइलेंस इज गोल्डन, मैं उसको झूठा बताने वाली हूँ। वी मस्ट टॉक। Good evening, friends. Good evening, everybody. Before I start, I would like to thank Mr. Sengupta ji for giving me this opportunity. आवाज ठीक आ रही है, रमनी? Yes. जी, बढ़िया आ रही है। Hello. And all of you for being there. We are lucky we can share our thoughts and exchange our ideas, friends. आप सबको याद होगा जब आप छोटे बच्चे थे तो मम्मी क्या बोलती थी, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। लिटरली शी यूज्ड टू स्केयर अस कि हम स्ट्रेंजर से बात करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, समथिंग बैड विल हैपन और समथिंग रियली। तो आज के दौर में हम लोग जो है वो मम्मी का जो इंस्ट्रक्शंस था वी आर गोइंग टू फॉरगेट, बिकॉज ब्रीफ प्लेजेंट एक्सचेंज with people you don't know can enhance your happiness, your mood, your energy and overall well-being. मेरा आज का टॉपिक यही है, how to get better at small talk. मैं नहीं बोलूंगी silence is golden. Small talk often promotes learning, expands your
worldview and contributes to a sense of belonging. You can maximize these benefits by chatting with a range of people like your colleagues, Uber drivers, waiters at a restaurant, and so on. But despite the benefits, we hate small talk. We all have this voice in our heads that says we are not very good at this social stuff called small talk. The more you do it, the more natural it will feel. Some experts who have researched the subject share the strategy, because how much you can talk about the weather, you have to discuss some other. बात करने के लिए शब्द और वक्त की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत है. मन होना चाहिए बात करने के लिए, तभी आप बात कर सकते हैं. So these experts have given us some tips which can help us. The first tip is take advantage of free information. Suppose you are attending some wedding or some baby shower function. Just ask the person next to you how you know the bride or mom to be. This is a terrific entry point for a deeper conversation. The tip number 2 is तारीफ कीजिए. किसी की भी तारीफ कीजिए आप. तारीफ किसको पसंद नहीं आती है? तारीफ से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं. So best is, but try not to comment on someone's appearance. Channel your curiosity on a striking dress, hair color, or a piece of jewelry. If you say, "Oh, I love your tattoo," it can start a deep conversation. The tip number 3 is you should skip questions about their marriage status or kids and stay away from controversial topics like politics and religion. Try a question like what you do after office hours. The tip number 4 is if someone asks a question, reply generously. Think of a conversation as a game and act as an active player. If someone asks you, "How are you?" and you say, "Good," you will go nowhere. You have to give a big sentence reply rather than a single word. Just explain your situation and say, then only you can start a conversation. If you say only good, no good. You will not go anywhere. The fifth and the last tip is how to end the conversation. Best is to introduce the person to someone and say you enjoy talking to them. Or if you want, mention something you could do with them in future. Some of the general questions you can ask them are about their life, their hobbies, which game they play, the books they read, the movies they watch, or some good restaurants around their area. You should be willing to start a conversation. Then you must focus and listen to them, what they are going to say. हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता है. हर किसी को attention चाहिए. हर कोई attention का भूखा है. I'm sure the tips can make you an expert in small talk. Otherwise, अगर आप बात नहीं करेंगे या बात नहीं करना चाहते हैं, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. It's only for your own good. Thank you so much. Thank you, everybody. Very nice. Very well said, उषा जी. कई बातों पे ऐसा होता है कि हम बात करना चाहते हैं, बट जब सामने वाला एटीट्यूड दिखाने लगे, Yes. तो फिर हम कैसे रिएक्ट करते हैं? हम डबल एटीट्यूड दिखाते हैं कि we don't need you. We can very well get managed very well without you. Yes. So it happens, but very good, very well spoken. Good. Thank you. Thank you so much, Ramya. So we go to our next speaker is our own रमनी अय्यर जी. वो एक कविता सुनाने वाले हैं, और कविता क्या है चलिए सुनते हैं. रमनी जी आइए. थैंक यू रमा जी.
Thanks to Dr. Sengupta for giving yet another opportunity to share my thoughts in this platform. Good evening, friends. Every time I hear the poems written by Bharat Bhushan ji, Rastogi madam, or Ratna Umaji madam, I feel like writing a poem myself and presenting it in this forum. But I have not yet developed this skill. As an alternative, I will read out a poem in English written by Patricia Fleming. Patricia Fleming has been working in a forensic hospital for psychiatric patients for over 35 years, which enabled her to get a perspective on the meaning of life. She puts down her ideas effectively, and then she put down their ideas effectively on retirement in 2016 by writing poems which have become very popular because of their content. This poem, which I'm going to read out today, has the heading, I Still Matter. It highlights the importance of living with pride and dignity even at old age. You are no more considered as useless, but you still matter, at least in yourself and in your surroundings. So now I read the poem. The title is I Still Matter. I am still here. My looks are nothing special. My face reveals my age. My body shows some wear and tear, and my energy is not the same. Too often, my memory fails me, and I lose things all the time. One minute I know what I plan to do, and the next it may just slip my mind. I try hard to avoid my mirror. There are things I would rather not see, and even those times when I just catch a glimpse, I can no longer recognize me. The things I used to do with ease can now cause aches and pains, and the quality of the things I do will never be quite the same. I always compare my older self to those younger versions of me, and I know I am wasting too much of time missing who I used to be. But the thing that really makes me sad is despite what people see, underneath my tattered, worn out shell, I am still the same old me. My heart can still feel endless love, and at times it still can ache. My heart can fill with so much joy, and then it can suddenly break. My soul still feels sympathy and longs for forgiveness and peace. And there are times its light shines boldly through, and times when it longs for release. It is true, maybe now that I am older, feeling lonely may be status quo, but it also has made me more willing to forgive and let past conflicts go. So maybe to some I look ugly and old, a person who barely exists. I am still quite aware of the beauty inside me, and my value should not be dismissed. So, although not as strong and no beauty, it is true I am still here and want so much to live, and I know that there is no one in this world quite like me, and no one who has more to give. Thank you very much. Beautiful, sir. Beautiful poem read by you. And I'm also that same old, nothing changed. And you are the cutest ever I've met. Very nice, very well said, sir. Thank you. They don't, they forget. In fact, our family members also, they forget what we were at the young age. And when we become old, they think we are, ab rehne do ma, ab rehne do. So this is what we get generally with the youngsters. Very well, very nice poem. So we go to our next speaker, and the next speaker is Shashi ji, Shashi Bala Rastogi. शशि जी आइए, और आज आप क्या सुनाने वाले हैं?
शशि जी, शायद नहीं है मैडम, मैंने देखा नहीं उनको। आगे बढ़िए। ओके जी। सो हमारे अगले वक्ता हैं JL चौधरी जी, जो एक अपनी लिखी हुई कविता सुनाएंगे। आइए चौधरी जी, अपना कविता पेश करें। नमस्कार, आवाज आ रही है साहब? जी जी, बहुत साफ आ रही है। ये एक कविता नहीं है, ये एक संदेश है, और इसको मैंने लिखा था 2016 में, और इसका शीर्षक दिया था मैंने जिंदगी का रंगमंच। रंगमंच पर किसी किरदार में जीना या जिंदगी में जीते हुए किरदार निभाना, दोनों एक ही बात है। कहते हैं जिंदगी एक रंगमंच है और जीवन रंगमंच पर होने वाले एक एकांकी नाटक की तरह है। कोई भी नाटक को सफल बनाने में उसके कलाकारों द्वारा निभाया किरदार बहुत अहम हिस्सा है, पर ये सभी किरदारों को निर्धारित उचित समय पर स्टेज पर निर्धारित स्थान पर प्रवेश और फिर निकासी और समय पर पूरी संवेदना और भाव के साथ संवाद बोलना जरूरी होता है, जो एकांकी नाटक के निर्देशक द्वारा निर्धारित होता है। और जो कलाकार निर्देशक के अनुसार निर्धारित किरदार में जीकर किरदार निभा जाता है, वो सफल कलाकार कहलाता है। जो कलाकार रोता भी है, हंसता भी है, गाता भी है, प्यार मोहब्बत भी करता है, क्रूरता भी करता है, पर सब उस निर्देशक के निर्देश पर, उसके निर्देश के अनुसार, तब निर्देशक की कल्पना, रचना, संरचना, संकल्पना, रंगमंच की साज सज्जा, ध्वनि नियंत्रण साकार और सफल हो जाती है। एक सुलझा हुआ निर्देशक एक एकांकी सफल होने पर सभी कलाकारों की भरपूर हौसला अफजाई करता है, और कलाकार कमजोर होते हैं उनको तराशता है, उनकी सरेआम बेइज्जती नहीं करता। बस उसी तरह जिंदगी के इस स्टेज पर हम सब कलाकार हैं, और हमारा निदेशक कौन है? हमारा निदेशक है वो परमात्मा, जो हमें एक किरदार देता है निभाने को। बस हमें उस किरदार में जीता जाना है और जीते हुए निभाना है, और अगर जी गए बखूबी निभा पाए दिया गया किरदार तो जीवन सफल है, वरना असफल तो होते ही हैं। पर उस अनंत अगम अपार अनाम उस निदेशक, उस परमात्मा को हम कोई दोष नहीं देते। हम माता पिता हैं, पुत्र पुत्री हैं, भाई भाई हैं, बहन बहन हैं, भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, सास ससुर हैं, बहू दामाद हैं, देवर भाभी हैं, ननद भाभी हैं, देवरानी जेठानी हैं, मामा मामी हैं, चाचा चाची हैं, मौसी मौसा हैं, चचेरे ममेरे मौसेरे भाई बहन हैं, सहपाठी हैं, सहकर्मी हैं, सहयोगी हैं, दोस्त हैं, दफ्तर में हाकिम हैं, मुलाजिम हैं, गुरु के शिष्य हैं या शिष्य के गुरु हैं, पंडित हैं, काजी हैं, मुल्ला हैं, दुकानदार हैं, कारोबारी हैं, कामगार हैं, पड़ोसी हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, लेनदार हैं, देनदार हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं या कुछ भी। और बस जरूरत है परमात्मा रूपी निदेशक के द्वारा दिए गए उस किरदार को पूरी ईमानदारी, अपनी पूरी सामर्थ्य से पूरा का पूरा निभाना, सही समय पर, सही जगह पर, सही आवाज में सही संवाद बोलना, जरूरत हो तो पत्थर की तरह सख्त, ओस की तरह नम्र हो जाना, और एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना, फिर संकेत पाते ही मंच छोड़ देना, और फिर जब निभ जाए उस किरदार को, तो उस अलग अगम अनाम अनंत निदेशक को नमन कर धन्यवाद कर देना कि बड़ी मेहरबानी है तेरी, ये किरदार निभा पाया,
फिर देखो वो निर्देशक भावी जीवन में कैसे कैसे किरदार देता है। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम मैं अपना किरदार बखूबी निभा पाया या नहीं, पर इतना जरूर कह सकता हूँ, कमियां तो मुझ में भी बहुत हैं, पर मैं बेईमान नहीं हूँ। मैं सबको अपना मानता हूँ, सोचता फायदा या नुकसान नहीं हूँ। एक शौक है खामोशी से जीने का, कुछ कोई और मुझ में गुमान नहीं। छोड़ दूं बुरे वक्त में अपनों का साथ, वैसा मैं इंसान नहीं। आप सबका शुभ चिंतक जवाहरलाल चौधरी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा आपने। सच कहा आपने, हमारे निर्देशक परमात्मा है, उनकी ही मर्जी से हमारी जिंदगी चलती है, उनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। लेकिन ये समझने में शायद हमारी जिंदगी निकल जाती है, यही बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत। थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग सच अ गुड पोएम, वेरी नाइस। सो वी मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। आगे वक्ता है हमारे अगले आनंद जी, आनंद सक्सेना जी, जो पता ही है आप सब लोगों को, हमने परसों ही स्वतंत्रता दिवस मनाया है हम सब ने। तो इसी संदर्भ में आनंद जी कुछ कहना चाहेंगे। आइए आनंद जी। थैंक यू रमनी जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, साफ आ रही है। Thanks once again, Dr. Sengupta sir, for giving me another opportunity to speak on this platform. अभी 15 अगस्त को इंडिया ने, भारत ने 76 साल पूरे किए हैं आजादी के, और we have entered in 77th year. Everybody knows there are lakhs of freedom fighters who struggle and sacrifice their life to free India from the clutches of British India. They are men, women, children and all. But today I am going to talk about the teenager female freedom fighters of India. At the age of 16, they became revolutionists and they contributed a lot for our freedom. And their name is Sunita Chaudhary and Shanti Ghosh. Sunita Chaudhary, at the age of 16, she started doing work for to bring India free from the atrocities of the Britishers. Sunita Chaudhary, she was born on 22nd May 1917 in Komila district of Bengal. Now it is in Bangladesh. To Uma Charan Chaudhary and Sura Sundari Chaudhary in Bengal caste family. She was influenced by the revolution activities of Ulaskar Datta, who also lived in Komila. On 16 May 1931, she was selected as captain of Women's Volunteers of Tripura Zilla Chhatri Sangh, and at the same time, she became custodian of the firearms and in charge of training female members of Kshatri Sangha in Lati, sword and dagger play. Her friend Shanti Ghosh, she was born on 22nd November 1916 in Calcutta. She belonged to Yadav caste and was daughter of Devendra Nath Ghosh, a nationalist and professor of Victoria College of Calcutta. On 14 December 1931, Sunita Chaudhary and her friend Shanti Ghosh, both 16 years at that time, they walked into the office of Charles Stevens, who was a British bureaucrat and district magistrate of Komila, under the pretense that they wanted to present a petition to arrange a swimming competition among their classmates. While Stephen was looking at the documents, Suniti and Shanti removed automatic pistols which were hidden under their shawls and shot and killed Stephen.
Both the girls were taken into custody and imprisoned in the local British jail. In February 1932, both the girls appeared in the court of Calcutta. Being minors, both were sentenced to jail for 10 years. Both were held captives in Hisley detention camp as a third-class prisoners. The effect of Suniti activities were also faced by her family, with her father's government pension was stopped. Her two elder brothers were held in custody without trial. Her younger brother died due to malnutrition. She was released after Shanti Goshi in 1939 after having served 7 years of her sentence because of the amnesty negotiations between Mahatma Gandhi and British authorities. Regarding public and media response, contemporary Western periodicals portrayed the assassination of Stephen as sign of Indian outrage against the ordinance that suppressed the civil rights of Indians and that of free speech. Indian sources characterized the assassination of Stephen by Suniti and Shanti. It was their response to behavior of British district magistrates who had abused their position of power to rape Indian women. After the release, Suniti Chaudhary studied and passed MBBS and became a doctor in 1947 and married trade union leader Pradyot Kumar Goshi. Suniti Chaudhary died on 12th January 1988 at the age of 71 years. Her friend Shanti Goshi, after release from jail, attended Bengali Women's College and participated in Indian Communist Movement. She later joined Indian National Congress in 1942. She married Professor Chittaranjan Das. She served as a West Bengal Legislative Council from 1952 to 1962 and 1967 to 1968. She also served as West Bengal Legislative Assembly from 62 to 64. She wrote and published a book entitled Arun Bahini. She died in 1989 at the age of 72 years. We salute these two youngest female freedom fighters of India, and that was the story of two female freedom fighters which are unknown to many. Thank you very much, Ramniji. Thank you very much. Very well said, sir. Actually, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे देश के लिए लड़ते, उनमें क्या कहते हैं, गट्स, देश के लिए जान देने के लिए वो तैयार रहते, तत्पर रहते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं, उत्कृष्ट बोल सकते हैं उन्हें. वो सब नहीं कर सकते, बट जो कर रहे हैं उन्हें हमारा सलाम. तो वेरी नाइस सर, वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच. अब हमारे अगले वक्ता हैं चंद्रकांत राणे जी, जो बहुत मजे की बात है, ये जो वो कहने वाले हैं बहुत मजा आने वाला है. उम्र ना बढ़ने का राज. तो आइए चंद्रकांत जी और बताइए किस तरह हम अपना उम्र ना बढ़ाए और हमेशा जवान ही रहे. नमस्ते मैम. नमस्ते जी. लंबे और खुशहाल जीवन की जापानी टेक्निक. बुक का नाम है इकिगाई. टॉपिक है उम्र ना बढ़ने का राज. छोटी छोटी बातें आपको आनंद और दीर्घायु देती है, इस पर हम बात करेंगे. जी जरूर. स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, यह पुरानी कहावत काफी अर्थपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली है. इस कहावत से हमें यह बात समझ में आती है कि शरीर और मन दोनों ही महत्वपूर्ण है. इन दोनों का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर होता है. जोश से भरा हुआ मन हमेशा आपको जवान रखता है और उम्र बढ़ने के असर कम दिखाई देती है. जिस प्रकार से शारीरिक व्यायाम नहीं करने की वजह से हमारे शरीर और जोश पर बुरा असर होता है, वैसे ही यदि हम मानसिक व्यायाम नहीं करते हैं तो हमारी न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन भी कमजोर होने लगती है.
जब दिमाग को नई बात जानकारी मिलती है तो दिमाग एक नए कनेक्शन का निर्माण करता है और पुनर्जीवित होता है। इसीलिए हमेशा नई बातें करना और बदलाव के सामने जाना महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए भले ही हमें कठिन लगे और तनाव महसूस हो, तब भी हमारा अपने आराम के दायरे के बाहर जाना जरूरी होता है। मानसिक प्रशिक्षण का फायदा अलग अलग स्तरों पर होता है। जब हम कोई भी काम पहली बार करते हैं तो वह आपको कठिन लगता है, उसे पूरा करने में आपको ज्यादा परेशानियां होती है। लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हो तो पहली बार किया हुआ अभ्यास काम में आता है और वो काम आपको उतना कठिन नहीं लगता। मानसिक व्यायाम का सबसे साधारण उदाहरण है दूसरे के साथ कोई खेल खेलना या गपशप करना। इससे अकेलापन और निराशा भी नष्ट हो जाती है। जब हम 20 के उम्र पार करते हैं तभी हमारे न्यूरॉन्स कमजोर होने लगते हैं। यदि हम बौद्धिक व्यायाम करते हैं तो न्यूरॉन्स के कमजोर होने की यह प्रक्रिया धीमी कर सकते हैं। कुछ लोग वास्तविक उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखते हैं। अध्ययन से यही पता चला है कि तनाव इसके पीछे महत्वपूर्ण वजह है। बीमारी की सबसे बड़ी वजह होती है तनाव यानी टेंशन। आजकल लोग बहुत ही तेज गति से जीवन जी रहे हैं, इसीलिए तनाव निर्मित होता है। वैसे देखा जाए तो यह प्रक्रिया अच्छी है, क्योंकि इसी मदद से हम खुद को अपने आसपास के माहौल में ढाल सकते हैं। जब हमें खतरे का संकेत मिलता है तो हमारा ब्रेन पिट्यूटरी सेल की सक्रिय करते हैं। इससे हमारे शरीर में हार्मोन्स बनते हैं। इसी सब केमिकल रिएक्शन के वजह से हमारी सांस लेने की गति और पल्स रेट बढ़ जाता है। इससे हमारे स्नायु तैयार होते हैं जो सामने खतरे को अपने आप को बचाने के लिए सक्षम होते हैं। उसी वक्त हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज और डोपामाइन की मात्रा को बढ़ाता है और हम चार्ज हो जाते हैं। इससे हमारा तनाव कम हो जाता है। लेकिन हर थोड़े समय के बाद इस तनाव को बार बार आना शरीर के लिए हानिकारक होता है। लगातार आने वाले तनाव से निराशा पैदा होती है और जरूरी हार्मोन्स का निर्माण रुक जाता है। इसी वजह से बाकी परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ाहट, नींद नहीं आना, चिंता, हाई ब्लड प्रेशर। इससे बुढ़ापा आता है। तनाव कम करने के लिए सजग, चौकन्ना, माइंडफुल, वॉचफुल रहना जरूरी है। ऐसा करने से हम अपने आप को वर्तमान में जीने लगते हैं और विचारों को कंट्रोल में ला सकते हैं। माइंडफुल की अवस्था तक पहुंचने का एक मार्ग है मेडिटेशन और प्राणायाम। इस माध्यम से हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और तनाव पर यकीनन काबू पा सकते हैं। ज्यादा बैठे रहने से भी बुढ़ापा चढ़ता है। यदि हम अपने रोज के जीवन में छोटे छोटे बदलाव करते हैं, जैसे कि रोज 20-30 मिनट पैदल चलना, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, सामाजिक कार्यों में पार्टिसिपेट करना, सही मात्रा में नींद लेना, किसी टीम का सदस्य बनना जैसे कि MRL, इससे हमारा मन और शरीर दोनों तरोताजा होगा और इसी में लंबी उम्र के बीज बोए जा सकते हैं। माना कि बाहरी और भीतरी दोनों स्तरों पर हमारी उम्र बढ़ती है, लेकिन लोगों की उम्र पहचानने का सबसे आसान तरीका है उनकी स्किन। हमारे शरीर के अंदर जो बदलाव होते हैं वो त्वचा पर स्पष्ट दिखते हैं। विज्ञान ने यह साबित किया है कि युवा रहने के लिए सबसे प्रभावी साधन है नींद। जब भी हम नींद में होते हैं तभी हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स तैयार होते हैं, जिससे हम युवा दिखते हैं। मेलाटोनिन का बनना बढ़ाने के लिए संतुलित भोजन और उसमें कैल्शियम ज्यादा मात्रा में सेवन करना, सनलाइट सही मात्रा में लेना, सही मात्रा में नींद लेना। इस बात पर शोध हो रहा है कि क्या कृत्रिम तरीके से मेलाटोनिन की पूर्ति हो सकती है और इससे लंबी उम्र पा जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस बात को पुष्टि हो जाएगी कि हमेशा युवा रहने का रहस्य हमारे अंदर ही है। थैंक यू वेरी मच मैम।
थैंक यू सो मच सर, बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज आपने बताए हमें जवान रहने के लिए। और ऐसे देखा जाए तो हमारे एमआरएमएल में मुझे कोई भी बूढ़ा नजर नहीं आता यहाँ। ऑल आर वेरी एक्टिव एंड दे आर रियली सो गुड। अभी हमने 6 अगस्त को, जो मैं मिस कर गई हूँ, जो उनका स्वतंत्रता दिवस का जो गाने, जो ड्रामा उन्होंने पेश किया है, उनकी एनर्जी देखते हुए मुझे कहीं नहीं लगता हम कहीं सीनियर सिटीजन के ग्रुप में भी आते हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। सही कहा, हमें अपना मन शांत और एक्टिव रखेंगे तो हमारा शरीर भी हमें उसका साथ देगा। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अब हमारे अगले जो वक्ता हैं उज्जवल जी, इसी के कंटिन्यूएशन में कह सकते हैं हम, वो कहने वाले हैं शांतिपूर्वक जीने का तरीका। तो आइए उज्जवल जी, बताइए, कहिए नमस्कार कैसे मैडम। शांतिपूर्वक जिया जाए। नमस्कार मैडम। आई होप नमस्कार। मैं ऑडिबल हो रहा है, आवाज आ रहा है ना? जी 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 जी। ओके। सो पीसफुल लाइफ के लिए कुछ चीज जो मैंने जो ज्ञान प्राप्त तो किया है कुछ कुछ जगह में पढ़ के, वही जस्ट हम दोहराने वाला हूँ। इट इज नॉट समथिंग न्यू, बट पीसफुल, पीस जो पर्टिकुलर वर्ड है, पीस या हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, दे आर ऑल अगेन इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर। सो इसके बारे में एक स्टोरी मैंने पढ़ा जो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये स्टोरी ऐसा है कि एक बार एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ। तो ड्राइंग कंपटीशन में कुछ ड्राइंग बच्चों को ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। सो द स्टूडेंट्स ड्रॉड, एंड उसमें से वो टीचर, ड्राइंग टीचर, ही एक्चुअली सिलेक्टेड टू ड्राइंग्स। दोनों ड्राइंग में उन्होंने लिया है। एक्चुअली ये ड्राइंग का टॉपिक भी वही था कि पीसफुलनेस, अदर पीस, इसके ऊपर कुछ था, समथिंग लाइक दैट। देन दोनों चीज शॉर्टलिस्ट किया गया है। अभी वो दोनों चीज में सब लोग जब देखा तो उसमें एक पिक्चर में ऐसा था कि इट इज ए पॉन्ड, वेरी क्वाइट एंड काम पॉन्ड, एकदम स्टील वाटर, ऊपर से नीला आसमान दिख रहा है, एकदम मिरर जैसा दिख रहा है। देयर इज नो टर्बुलेंस एंड एवरीबॉडी, कुछ लोग उधर बैठे हैं आराम से, ऐसा कुछ कुछ उसने बनाया है। तो एवरीबॉडी थॉट कि दिस मस्ट बी द विनर। एंड बट सेकेंड पिक्चर जब लोग देखा तो दे वर वेरी मच एस्टोनिश्ड, सरप्राइजिंग था। सेकेंड पिक्चर में किसी ने ड्रॉ किया है तो इट वाज ए टर्बुलेंस, मतलब तूफान जैसा है, स्टॉर्मी वेदर आ रहा है, पेड़ भी हिल रहा है ऐसा दिख रहा है, एंड लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस आर देयर, एंड कालो एकदम ब्लैक आसमान था, क्लाउडी। तो लोगों को लगा कि ये कैसे हो गया, मतलब पीस का एक थीम है तो इसमें ये पिक्चर कैसे आ गया। तो देन बट फाइनली द टीचर सिलेक्टेड द सेकेंड वन, जो टर्बुलेंस वाला था। तो लोगों को लगा कि पीस तो पहला पिक्चर में दिख रहा है, सेकेंड पिक्चर में क्यों ये आ रहा है। तो देन एवरीबॉडी ऑब्जेक्टेड कि सर ये कैसे हो गया। तो देन द टीचर एक्सप्लेन कि आपने सेकेंड पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर तो आपने समझ गया, सेकेंड पिक्चर आपने ठीक से देखा नहीं है। वो टर्बुलेंस के अंदर में देखो एक चिड़िया का घोंसला है उधर, देयर इज ए नेस्ट, बर्ड नेस्ट, और वो बर्ड नेस्ट के अंदर वो छोटा छोटा दो बर्ड्स को खाना खाते हुए दिखाया है वो, जो इसने वो ड्रॉ किया है। तो कितना पीसफुली वो खा रहा है उधर। तो मतलब आई, द मीनिंग इज कि इट इज नॉट, द पीस इज नॉट एन एब्सोल्यूट पीस, वी डोंट वांट एन एब्सोल्यूट पीस। सी आज अगर पूरा दुनिया शांत हो जाएगा, दैट इज नॉट पीस। सो पीस वी हैव टू गैदर विथ आवर इनर पीस, मीन्स आवर, हमारा एनवायरमेंट में तो टर्बुलेंस रहेगा, टर्बुलेंस इज लाइफ। अगर आप पूरा ही जमाना, पूरा आरती, पूरा हमारा एनवायरमेंट ही पीसफुल हो जाएगा, देन पीस का कुछ मतलब नहीं है। सो आप जहाँ पे टर्बुलेंस है उधर दो बर्ड्स ऐसा बैठ के आराम से खाना खा रहा है, उसके साथ किचिर मिचिर जो साउंड्स करता है वो कर रहा है। सो दैट मीन्स दे आर पीस, दे एक्चुअली एंजॉयिंग द पीस, एंड दैट इज दे एंजॉयिंग देयर इनर पीस।
So that is what the teacher wanted to say. Then everybody realized, yes, what is the meaning of peace? Now peace के बारे में मैं quickly एक दो चीज जो मेरा lines सुना है, उसमें एक तो बोलता है कि पीस का एक पर्टिकुलर ingredient है कि you synchronize yourself with nature as long as far as possible. जैसे हम जैसे birds, they always keep to a schedule. The early morning they rise and they sleep at night and they start singing at a proper time and come back home. But हम human being ऐसे नहीं करते हैं, and we disturb our peace. And we are very different. We are very away. Slowly we are going away from nature. So it is better we synchronize ourselves with nature. So उसमें peace का एक बड़ा हिस्सा हमारे पास आ ही जाएगा अपने आप. There is no trick in it. And then second thing is हम peace के साथ success का बहुत ज़्यादा हम combination करते हैं, equation बनाते हैं. ये हमारा success नहीं मिला तो peace नहीं है. We become unhappy and our peace is disturbed. So ये equation हमको तोड़ देना का है. There is nothing to do with success and peace. दोनों को but proportional to each other नहीं करने का. Success is a different thing. Peace is different thing. And another important thing which I learned is peace can be manufactured in your mind. Means peace is not something given by God or something कोई और आपको देगा. You have to make it, and it is your choice how you make that, how you get that peace and happiness and satisfaction, whatever you say. And then finally it boils down to you take charge of your mind. Means you go to nature, you take charge of your mind. If you can control your mind, then peace is yours. And then you can prepare your own happiness and your own peace. That's all. Thank you. Thank you so much, Ujjwal ji. Very nicely spoken. You have said very rightly the picture what you told the story about कि जहाँ पर turbulence है, but वो चिड़िया काफी शांत में बैठी हुई है. तो यही बात हमारे इंसान के अंदर भी होना चाहिए. बाहर के शोर हमें it is okay, but हमारा जो अंदर का शोर है उसको हमें शांत करना है. And that is how we can get peace in our life. Very well said, sir. Thank you so much. And before I go to my next speaker, I think Shashi ji is there. Shashi Balaji, if you want to speak, you can. You are on mute, ma'am. Yes, madam. Yes. Yeah. Okay. So you can tell. So Okay, I'll go madam. to the next. Thank you so much. Thank you so much, Ramani ji. MRL के सभी सदस्यों को पहले तो मेरा हार्दिक शुभकामनाएं इस स्वतंत्रता दिवस के लिए, और सभी को मेरा आज शाम की संध्या की बहुत बहुत हार्दिक नमस्कार. हम सब ने स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया, पूरे देशभक्ति के साथ मनाया. मगर क्या होता है कि लोगों के हाथों में तिरंगे झंडे भी थे छोटे, और बच्चों के हाथों में प्लास्टिक के, किसी के हाथों में कागज के छोटे छोटे झंडे थे. लेकिन शाम को जब हम बाहर निकले तो मैंने देखा कि कुछ वो जो झंडे छोटे छोटे थे जिसमें प्लास्टिक की डंडी होती है और वो कागज के थे, वो नीचे जमीन पे पड़े हुए थे. तो मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने उनको उठाने लगी उन झंडों को, तो मुझे ऐसा लगा कि वो हमसे कुछ कह रहे हैं. हालांकि वहां पर सफाई करने वाले लोग भी थे, लेकिन वो उधर खड़े हुए थे और हम इधर से जा रहे थे क्योंकि हमें तुरंत ही उस समारोह के बाद कहीं जाना था. तो मैंने देखा कि कुछ झंडे जमीन पे ही पड़े हुए थे, और जब मैं उन्हें उठाने लगी तो ऐसा लगा कि वो हमसे कुछ कह रहे हैं. शायद वो हमसे ये कह रहे थे कि ये कैसा सम्मान महीनों पहले से लोग लगते हैं मुझे बनाने. महीनों पहले से लोग लगते हैं मुझे बनाने, अपने घरों, दफ्तरों और इमारतों में लगाने. खादी रंग कर 3 रंगों की पट्टियां बनाई जाती हैं बनावट नाम की. खादी रंग कर 3 रंगों की पट्टियां बनाई जाती हैं बराबर नाप की. बीच के सफेद रंग की छपाई होती है नीले चक्र की. कागज, प्लास्टिक, टेरिकॉट या कॉटन या साटन. कागज, प्लास्टिक, टेरिकॉट, कॉटन या साटन, किसी भी तरह का कपड़ा हो,
नाप का तरीका भी वही 2/3 का ही स्टैंडर्ड हो। बड़े सम्मान के साथ चढ़ाया जाता हूँ डंडे पर मुझे, बड़े सम्मान के साथ चढ़ाया जाता है डंडे पर मुझे। सब देखते रहते हैं एक टक मुझे ऊपर पहुंचने तक। पकड़ कर रखते हैं राष्ट्रगान तक बड़े सम्मान से। जिनके हाथों में होते हैं वो राष्ट्रगान तक बहुत सम्मान के साथ मुझे पकड़ कर रखते हैं। लोग और बच्चे जो हैं, लोगों के हाथों में कपड़ों के होते हैं और बच्चों के हाथों में कागज के होते हैं। मगर उसके बाद, मगर वो कार्यक्रम हो जाने के बाद क्या होता है? कोई नहीं रखता मेरे सम्मान का ख्याल, कोई नहीं रखता मेरे सम्मान का ख्याल। कभी कहीं रख दिया जाता हूँ, कभी गिरा होता हूँ जमीन पर, कभी कहीं रख दिया जाता हूँ, कभी गिरा होता हूँ जमीन पर। क्यों छोड़ दिया जाता है मुझे मेरे हाल पर? क्या मेरा नहीं है कोई भी सम्मान? क्या मेरा नहीं है कोई भी सम्मान? जिस पर था तुम्हें कुछ देर तक इतना अभिमान, जिस पर था तुम्हें कुछ देर तक इतना अभिमान। संभालो, सहेजो, याद रखो, मैं अपने देश की आन हूं, शान हूं, बान हूं। और अपने मुझे संभालो देशभक्ति के भाव से, तो मैं शहीदों की याद दिलाता रहूंगा हमेशा, शहीदों की याद दिलाता रहूंगा हमेशा। सदैव तुम्हारी स्वतंत्रता की कामना करता रहूंगा, सदैव तुम्हारे स्वतंत्रता की कामना करता रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा आपने। अगर आप फिर आपका वाईफाई प्रॉब्लम हो रहा था शायद, इसलिए आई नहीं, तो हम मिस कर जाते ये सारा। बहुत अच्छा बोला आपने। सच में हम उस झंडे को, उस फ्लैग को उस समय तक ही उसका इम्पोर्टेंस देते हैं, और उसके बाद वो कहीं कोने में पड़ा होता है और हम भूल जाते हैं उसके बारे में। बहुत सही था। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो आवर नेक्स्ट स्पीकर इज सरोज जी, जो स्वतंत्रता दिवस के बारे में ही कुछ कहेंगी। आइए सरोज जी। शुरू करिए। नमस्कार रमनी जी। जी नमस्ते। बहुत अच्छा बोला अभी शशि जी ने। मेरा भी विषय कुछ वैसा ही था, मेरे भी मन में यही बात थी पूरी। और आज मैं स्वतंत्रता दिवस की खुमारी अभी तक उतरी नहीं है, 2 ही दिन हुए हैं आज। और इस संध्या पर सबको मेरा नमस्कार। हम सब यहाँ बहुत अच्छे मंच पर एक साथ मिलकर अपने मन के विचारों को बांटते हैं, और इससे हमारा मानसिक विकास होता है, तरोताजा हो जाते हैं हम। तो आज का विषय है मेरा स्वतंत्रता दिवस पे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। दिन, समय, काल, स्थान, परिस्थितियां और लेखक का व्यक्तित्व शब्दों पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं और साहित्य को हमारे बढ़ाते रहते हैं। और अलग अलग तरह के लेखक अलग अलग तरह के अपने वक्तव्य लिखकर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जिनकी कलम से लिखे गए हर शब्द जीवन पर्यंत अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। कुछ खास ऐसे शब्द बन के निकल आते हैं जो जीवन पर्यंत अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। ऐसे 2 व्यक्तित्व को मैंने चुना है। ऐसे 2 व्यक्तित्व हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1975 में इंदिरा जी की लगाई हुई आपातकाल और अपनी जेल यात्रा से छूटकर, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय अटल बिहारी जी को जेल हो गई थी। तो अपनी जेल यात्रा से छूटकर एक आम सभा को जनसंघ का प्रतिनिधित्व करते हुए अटल जी ने अपनी शैली और हाव भाव से इन शब्दों में अपना भाषण शुरू किया। जल्दी से जेल से निकलते ही जब भी उनको मौका मिला तुरंत उन्होंने अपना भाषण शुरू कर दिया। क्या था? बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने,
बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने, खुली हवा में सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। खुली हवा में सांस तो ले ले, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। अटल जी और दिनकर जी दोनों स्वभाव से सौम्य और सॉफ्ट स्पीकिंग थे, एकदम मृदुभाषी थे, लेकिन बात जब देश के हित की आती थी तो दोनों ही बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। चाहे उनके सिर पर इंदिरा गांधी जी का हाथ हो, चाहे नेहरू जी का हाथ हो, वो सब उनसे उनको कोई चीज का डर नहीं रहता था। जब देश के हित की बात आती थी तो बोलने में चूकते नहीं थे। ऐसा ही हुआ एक किस्सा रामधारी सिंह दिनकर जी के साथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिनकर जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये तो नेशनल अपने पोएट हैं, राष्ट्र कवि हैं, इनको एक राज्यसभा की सीट दे दी जाए तो अपना जो वक्तव्य है वो तो सेफ रहेगा पूरा, चलो इनको एक सीट दे दी जाए। तो उनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर दिया। फिर भी नेहरू जी की नीतियों के विरोध में दिनकर जी ने राज्यसभा में ही बोलकर राजनीतिक भूचाल ला दिया। किसी को आशा भी नहीं थी कि हर कोई जानता है ये बात नहीं सही है, नहीं बोलना है, पर जो सही कवि होगा, सही लेखक होगा, वो बोलने में कतराएगा नहीं, उसको किसी चीज का भय डर नहीं रहेगा। तो यही एक हम लोगों में होना चाहिए कि हम किसी भी गलत चीज को स्वीकार ना करें। गलत कोई लगे बात, किसी से भी हो सकती है गलती, किसी भी तरह की, कोई भी पोस्ट पे हो वो, लेकिन उसको प्यार से समझा के या इनडायरेक्ट किसी भी तरह उस काम को देश के हित में कर लेना चाहिए बस। तो राष्ट्र कवि, खैर अब मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की सुंदर पंक्ति पेश कर रही हूँ, जो उन्होंने अपने देश के तिरंगे के लिए लिखी थी। अब हम लोगों का यही कर्तव्य होना चाहिए कि अपने बच्चों को ये सिखाएं कि ये देश का जो हमारा झंडा है, तिरंगा है, इसकी क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में, इसको हमें कैसे बचा के रखना है, इसको कैसे हमें इज्जत सम्मान से ऊंचा उठा के रखना है हमेशा। तो उन्होंने क्या लिखा था तिरंगे झंडे पे, नमो 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 स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो 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 नगाधिराज अंग की विहारिणी, नमो अनंत सौख्य शक्तिशील धारिणी, प्रणय प्रसारिणी, नमो अरिष्ट वारिणी, नमो मनुष्य की शुभेषणा प्रचारिणी, नवीन सूर्य की नई प्रभा, नमो नमो। हम नहीं चाहते किसी का तनिक हित अपकार, प्रेमी सकल जहान का भारत वर्ष उदार, सत्य न्याय के हेतु फहर फहर ओ केतु, हम विचारेंगे देश देश के बीच मिलन का सेतु, पवित्र सौम्य शांति की शिखा, नमो नमो। नमो स्वतंत्र की भारत की ध्वजा, नमो नमो। दहक रही है आज भी तुम में बलि की आग, सेवक सैन्य कठोर हम 40 करोड़, कौन देख सकता कुभाव से ध्वजे तुम्हारी ओर, कौन देख सकता कुभाव से ध्वजे तुम्हारी ओर, करते तब जयगान वीर हुए बलिदान, अंगारों पर चला तुम्हें ले सारा हिंदुस्तान, अंगारों पर चला तुम्हें ले सारा हिंदुस्तान, प्रताप की विवाह कृषानुजा, नमो नमो। नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा आपने, वेरी नाइस। तो हम चलते हैं हमारे अगले वक्ता मोदी जी। तो मोदी जी भी स्वतंत्रता दिवस यानी कि आजादी का अमृत महोत्सव के ऊपर कुछ कहेंगे, तो चलिए सुनते हैं मोदी जी। Am I audible? जी जी, यस। हम पिछले साल से ही सुनते आ रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आखिर ये क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू किया गया, क्यों किया गया, उसका उद्देश्य क्या था, उसका थीम क्या था, इस पर मैं कुछ बात करूंगा। 15 अगस्त 2022 को भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो गए थे।
इस खास मौके पर भारत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के जश्न को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का ऐलान किया। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के 75 हफ्ते पहले 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज किया था, क्योंकि अमृत महोत्सव 12 मार्च की तिथि गांधी जी की नमक कानून के विरोध में की गई 12 मार्च 1930 की दांडी यात्रा को ध्यान में रखकर ही तय की गई थी, जिसने हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू की और 15 अगस्त 2023 को यह यात्रा समाप्त हो गई। अब इसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाना, पूरे देश में देशभक्ति की भावना को ज्यादा से ज्यादा फैलाना, भारत के उन लोगों और सिपाहियों को याद करना जिन्होंने भारत को आजाद करवाया, देश की युवा पीढ़ी को आजादी का महत्व समझाना, देश के सभी लोगों के बीच भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में जागरूकता पैदा करना और हर घर में तिरंगा लगाने को बढ़ावा देना। आजादी का अमृत महोत्सव 2022 भारत देश के लोगों और जामाज सिपाहियों को समर्पित था। ये अमृत महोत्सव भारत के उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत ने हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया हुआ था। हर घर तिरंगा लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान था। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक राष्ट्र के रूप में ध्वज को सामूहिक रूप से घर लाना, फहराना राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बन जाता है। इस पहल के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना था। यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 को समाप्त हो गई। इस महोत्सव का 5 मुख्य थीम था: स्वतंत्रता संग्राम, 75 पर विचार, 75 पर समाधान, 75 पर कार्य, 75 पर संकल्प। पंच प्राण या अमृतकाल के 5 मूल सिद्धांतों में भारत के विकास का लक्ष्य औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को खत्म करना, हमारी जड़ों में सम्मान और गौरव, एकता का विकास और नागरिकों के बीच कर्तव्य की भावना शामिल थी। प्रधानमंत्री के शब्दों में यह महोत्सव केवल भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष तक ही सीमित नहीं, अपितु भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष से 100 वर्ष तक, 100 ईयर्स तक की अवधि तक है। इस अमृत महोत्सव की 7 प्राथमिकताएं थी। पहला था समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचाना, बुनियादी ढांचा, निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास एवं युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कहा है, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत एवं आत्मनिर्भरता का अमृत है। देश की 75वीं वर्ष का मतलब स्वतंत्रता का 75वें दिवस का मतलब 75 साल पर विचार, 75 साल पर उपलब्धियां, 75 पर एक्शन और 75 पर संकल्प शामिल है, जो आजाद भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। थैंक यू। वेरी नाइसली सेड मोदी जी। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ 75 इयर्स के लिए नहीं है, 100 इयर्स के लिए भी नहीं है। इट शुड गो ऑन एंड ऑन। Yes. Thank you so much. Thank you. And we go to our next speaker, रणबीर कौर जी। तो आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाह रही है। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको सबको? जी आ रही है। आप सभी को नमस्कार। मैं रणबीर कौर ओबेरॉय
आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा आज का टॉपिक है बेटी। इन सबसे अलग टॉपिक है मेरा बेटी। वास्तव में बेटियां हमारे समाज का आधार स्तंभ है। यह भविष्य में और भी अच्छे रिश्तों का आधार स्तंभ बना सकती हैं। मेरी आवाज आ रही है ना वहां तक? बना सकते हैं। यदि हम उसे जन्म से पहले ही मार देने या जन्म के लेने के बाद उसकी अच्छी देखभाल नहीं करेंगे, तब वो कैसे समाज का आधार स्तंभ बन सकती है। आजकल बहुत आवाज उठाई जा रही है फीमेल फिटिसाइड, पर मैं सोचती हूँ यदि उस बच्ची की हत्या कर दी होती तो शायद हिस्ट्री का वह नायक हमारे सामने न आता, जिसे सिखों ने शेरे पंजाब ही नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार ने लायन ऑफ पंजाब कहा था। वह शेरे पंजाब जन्म न लेता, जिसे जन्म देने वाली मां राजकौर की हत्या कर दी होती। राजकौर वालिया जिंद रियासत के मुखी गजपत राय की बेटी थी। उस समय बड़े घरानों में बेटे का जन्म लेना बहुत अच्छा माना जाता था, क्योंकि वह रियासत को संभालने वाला है। लेकिन बेटी को समस्या माना जाता था। बेटी का जन्म लेना अच्छा नहीं माना जाता था। जन्म ली बच्ची को सोते सोते ही मार देने का एक यत्न किया जाता था। वो था कि वो जन्म बच्चे को ही अफीम दे देते थे और उसे घड़े में डालकर जमीन में गाड़ देते थे ताकि वो सोते सोते ही मर जाए। ऐसा ही कुछ गजपत राय के घर में हुआ। उनके घर बेटी हुई, उनको पता चला तो उन्होंने भी वैसे ही किया। तुरंत कुछ पल ही गुजरे थे, उसको भी घड़े में अफीम दे के घड़े में डालकर मिट्टी में दबा दिए। बाय द लक उसी समय उस गांव में एक बाबा जी आए जिनका नाम था गुद्दड़ सिंह। वो अभी पिंड के अंदर, गांव के अंदर ही आए थे, तो लोगों ने उनको पहले ही बोल दिया इस घर ने बेटी को अभी अफीम देकर घड़े में डाल के जमीन में गाड़ दिया है। वो तुरंत उसी घर की तरफ आए, गजपत राय के घर में। गजपत राय के घर में आए तो गजपत राय ने कहा, आओ बाबा जी हमारे घर में खाना खाओ। बाबा जी ने बोला, मैं उनके घर खाना नहीं खाता जिन घरों में बेटी को मार दिया जाता है। गजपत राय वहीं खड़े खड़े कांपने लगे। उन्होंने कहा, हमसे भूल हो गई है। गजपत राय को बाबा जी ने बोला, ईश्वर ने चाहा तो वो बच्ची बच जाएगी, तुरंत जाओ और बच्ची को जाके ले आओ। उनके अहलकार भागे भागे गए और बच्ची को निकाल के लाए। जब बच्ची को निकाला तो देखा वो बच्ची अंगूठा चूस रही थी। वो बच्ची बच गई और वो बच्ची बचने के बाद वो बच्ची बड़ी हो गई। उसकी शादी चरण सिंह के बेटे महासिंह के साथ हुई, उस बेटी का नाम रखा गया राजकौर। उस बेटी की कोख से 13 नवंबर 1780 में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ। अगर वो बच्ची मार दी गई होती तो हमारे सामने ऐसा नायक जो शेरे पंजाब था वह नहीं आता। तो इसलिए बच्चियों की, बेटियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। यह गलत बात है। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। यदि आज भी घरों में बेटी हो जाए तो पहले चेहरा थोड़ा सा उदास हो जाता है और अगली बार बेटी ना हो इसके लिए अल्ट्रासाउंड और न जाने क्या क्या करा दिया जाता है। अभी भी ऐसा ही होता है गांव में, और पैसा भी खर्च कर दिया जाता है और बेटी को नहीं लेना है इसके लिए पहली सोच बना दी जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। उनकी सकारात्मक सोच से समाज बदली हो सकता है। तो बेटियां हमारी आन बान और शान है, हमारे देश की जान है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह नारा सिद्ध करके दिखाओ। नमस्ते। थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने मुझे बर्दाश्त किया। नहीं, बहुत अच्छा कहा आपने।
बहुत ही बढ़िया था, बहुत मार्मिक कहानी सुनाई आपने। बहुत मैंने भी ऐसे किस्से सुने हैं। तो आजकल मेरे ख्याल से गांव में भी थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है, बेटी को पूरा पढ़ा रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू सो मच, अच्छी बात कहने। थैंक यू टू ऑल। तो हम अब आ गए हमारे अंतिम चरण पर। तो हमारी आखिरी वक्ता हैं जया जी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बोलेंगी, शिव काशिद, जो आप लोगों को पता ही होगा, जो जिनकी शक्ल सूरत छत्रपति शिवाजी महाराज से हूबहू मिलती थी। तो चलिए सुनते हैं उनके बारे में। आइए जया जी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। MRN के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं जाता, कहा नहीं जाता, सुना नहीं जाता। उनका नाम है शिवा काशिद, जिसके बारे में अगर शिवा काशिद ने उस समय अपना बलिदान ना दिया होता और अगर शिवाजी को उस समय जीवन दान न मिलता तो शायद इतिहास कुछ और ही हो जाता। शिवा काशिद का जन्म पन्हालागढ़ के नीचे एक छोटे से गांव नेवापुर में नाई परिवार में हुआ था। बचपन से ही शिवा काशिद जो थे वो कुश्ती खेलना, पहलवानी करना, दंड पट्टा खेलना और गढ़ के ऊपर चढ़ना उतरना ये सब करते थे और उसमें वो माहिर थे। एक दिन शिवा काशिद को बाजी प्रभु देशपांडे ने देख लिया था और उनके दिल में कहीं वो उनका चेहरा वो बैठ गया था। और शिवा काशिद खुद शिवाजी महाराज के जैसे दिखते हैं उसे पता ही नहीं था, क्योंकि शिवाजी राजा महाराजा को ऐसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मिल सकते थे, नहीं देख सकते थे। अब असली कहानी यहाँ शुरू होती है। जब आदिल शाह शिवाजी महाराज को मारने के लिए, खत्म करना चाहता था, उस समय उसने सिद्दी जोहर को पन्हालागढ़ भेज दिया। सिद्दी जोहर 35,000 की सेना और 20,000 घुड़सवार लेकर पन्हालागढ़ को उन्होंने घेर लिया। घेरा लगभग 4-5 महीने चला। किले के ऊपर जो दाना पानी था वो भी खत्म होने को आया था। उसी समय शिवाजी महाराज को एक गुप्तचरों से एक खबर मिली कि औरंगजेब का मामा शाहिस्ते खान वो अपनी सेना 1 लाख के लगभग सेना लेकर वो पूना पर कूच कर रहा है। तब उन्होंने सोचा अब किले पर रहकर नहीं चलेगा, हमें कैसे भी करके बाहर निकल किले से नीचे उतरना ही पड़ेगा। उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने सिद्दी जोहर को एक संदेश भेज दिया, एक पैगाम भेजा कि हम संधि करना चाहते हैं। तो सिद्दी जोहर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा शिवाजी ने हार मान ली है और वह भी आत्मसमर्पण करने के लिए आने वाला है। ये सोचकर उन्होंने पहरा थोड़ा सा हल्का कर दिया। इसी का फायदा उठाते हुए शिवाजी महाराज ने क्या किया, एक 13 जुलाई 1660 की रात को, घनी रात, घना अंधेरा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाजी प्रभु देशपांडे को बोला इस वक्त का हमें फायदा उठाना चाहिए और हमें किले से उतरना चाहिए। बाजी प्रभु देशपांडे ने 2 पालकियां सजाई। एक पालकी में शिवाजी महाराज के जैसे दिखने वाले शिवा काशिद को लिया और दूसरी में शिवाजी महाराज को। शिवा काशिद को जब शिवाजी महाराज ने देखा अपने सामने तो वो चकरा गए, वो चौकन्ने रह गए कि ये बिल्कुल तो मेरे जैसा ही दिखता है, ये कौन है। तो शिवाजी महाराज ने शिवा काशिद को बोला बहुत बड़ी जान की जोखिम है, सिद्दी जोहर शायद आपको जिंदा भी नहीं छोड़ेगा, आप क्या करना चाहते हो, एक बार सोच लो। शिवा काशिद ने बोला महाराज अगर मैं आपकी सेवा करते हुए मेरे प्राण भी चले जाए तो मुझे कुछ चिंता नहीं है। और उस रात में, उस बारिश में 2 पालकियां 2 दिशा में चली गई। एक पालकी के साथ शिवाजी महाराज, बाजी प्रभु देशपांडे, फुलाजी प्रभु, रायाजी बांदल वगैरह चले गए उनके साथ में। और दूसरी पालकी में शिवा काशिद और थोड़े मावले उनके साथ चले गए। बहुत दूर जाने के बाद में बिजलियां कड़क रही थी। उस चांदनी रात में, उस रात में वो बिजली की चमकी में जो इसकी सेना थी, सिद्दी जोहर की जो सेना थी, उनको ये पालकी की मशाले, जाते हुए पालकी की मशाले दिख गई। उन्होंने उनका पीछा किया
और उस पालकी को पकड़ लिया। उन्होंने उनके मावलों को पूछा कि पालकी में कौन है? उन्होंने कहा शिवाजी महाराज जा रहे हैं। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया वो पालकी और लेकर सीधा सिद्दी जोहर के पास चले गए। सिद्दी जोहर बहुत खुश हुआ, हमने तो शिवाजी महाराज को पकड़ लिया है, ये सोचकर वो बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा पालकी से बाहर आ जाओ। शिवा काशी बड़े रुबाब से बाहर आ गए। उनके बिल्कुल चेहरे पर बिल्कुल भी चिंता नहीं थी या कुछ डर नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो पालकी से बाहर आ गए। सिद्दी जोहर ने उन्हें बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे, सवाल पूछे कि आप कौन हो, आप सचमुच शिवाजी हो, इतनी आसानी से कैसे हमारी पकड़ में आ गए? वो बोला मैं ही शिवाजी हूँ। उन्होंने जो कुछ सवाल पूछे उन्होंने उसके बराबर जवाब भी दे दिए। लेकिन सिद्दी जोहर के पास जो मराठी सरदार काम कर रहे थे, उन्होंने उनके कान में कहा ये शिवाजी नहीं है, ये नकली शिवाजी लग रहा है, क्योंकि शिवाजी महाराज हमेशा गले में कौड़ियों की माला पहनते हैं और इसके गले में तो वो नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये शिवाजी नहीं है, मुझे शंका हो रही है। सिद्दी जोहर ने वापस कड़कते हुए तलवार लेके उनके गर्दन पे रखी और पूछा तुम कौन हो, सच बताओ नहीं तो तुम्हारी गर्दन यहीं काट दी जाएगी। शिवा काशी क्या कर रहा था? वो वक्त बिता रहा था, वो सोच रहा था कि कहीं इन्हें मैं बातों में गुम करके रखूं और धीरे धीरे शिवाजी महाराज जो है वो अपने आगे आगे बढ़ते रहे और इनके चंगुल से बच जाए। फिर उन्हें बहुत समय के बाद शिवा काशिद ने कहा कि मैं शिवा काशिद हूँ, मैंने एक दिन के लिए शिवाजी का किरदार निभाया है और मुझे उस पर बहुत अभिमान है। तो शिवा इमीडिएटली तुरंत ही सिद्दी जोहर ने उनकी गर्दन काट दी, लेकिन वो मरते वक्त भी बोला जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और उसी समय तक शिवाजी महाराज जो थे वो बाजी प्रभु और उनके साथियों के साथ में पवनखिंड से लेकर विशालगढ़ की ओर चल पड़े थे। पवनखिंड की कहानी तो बहुत लंबी है, इतना सब मैं सुनाते जाऊंगी तो बहुत टाइम होगा। मुझे शिवा काशिद के बारे में बोलना था, मैंने बोल दिया। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू मैडम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कहानी, मैंने भी सुनी है पहले, लेकिन आज फिर सुनने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। वही मैंने जैसे पहले भी कहा था कि सबके दिलों में वो जिगर नहीं होता जो देश के लिए अपनी जान दे दे। तो इसी से हमारा बहुत 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 धन्यवाद आप सबको जो इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स में आप लोगों ने बात किया। तो इसी के साथ हमारा ये सबकी सुनो प्रोग्राम समाप्त होता है। आप सबको मेरा नमस्ते। नमस्ते। आशा करती हूँ सबको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। आपका एंकरिंग बहुत बढ़िया था। आपकी एंकरिंग बहुत अच्छी थी मैडम। एक्सेलेंट एंकरिंग रमणी जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सारे पार्टिसिपेंट्स एक से बढ़कर एक थे। जय हिंद, सैल्यूट करता हूँ। जी जी जी।